viewers, welcome to We Studies channel. Today in this video we will discuss about 30 very important questions of child development and pedagogy. हिंदी में जिसको बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र. तो लास्ट जो वीडियो था हम लोगों का, उधर में हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन वो सब एक पार्टिकुलर ईयर का बेस था और उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का सब टॉपिक से मिक्स्ड क्वेश्चन था. लेकिन आज से हम टॉपिक वाइज चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो सीटेट जो है, सीटेट का जो फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, उस टॉपिक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 30 क्वेश्चंस है और ये टोटल हम सीटेट 2020 के लिए जुलाई में जो होने वाला एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए हम टोटल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पोर्शन से हम लगभग 300 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो आप लोग ये वीडियो देखिए और बताइएगा कैसे लगा, और कमेंट सेक्शन में आप उसका विषय में बोल सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, in the progressive model of education as implemented by CBSE, socialization of children is done in such a way so as to expect them to: option 1, give up time consuming social habit and learn how to score good grade; option B, be an active participant in the group work and learn social skill; option 3, prepare themselves to uniform to the rules and regulation of society without questioning; option 4, accept what they are offered by the school irrespective of their social background. And here the right option will be an active participation in the group work and learn social skill, option 2. Clear? Now next question, this one is a very direct question and ये क्वेश्चन आया था सीटेट 2014 में. Which of the following is based on Vygotsky socio-cultural theory? Option 1, operant conditioning; option 2, reciprocal teaching; option 3, culture neutral cognitive development; option 4, insight learning. And the correct option will be option 2, reciprocal teaching. Next option, a teacher says to her class, an individual assignment are designed to help individual student learn more effectively. All students should complete assignment prescribed without any assistance. She is referred to which of the following stage of Kohlberg model development? That means here teacher in the class से something कुछ बोलते हैं और उसके ऊपर बेस करके हमको निकालना है कि ये कोलबर्ग का जो मॉडल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के किस स्टेज से ये बिलोंग करता है. ये सीटेट 2014 में आ चुका है. एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1, कन्वेंशनल स्टेज 4S, लॉ एंड ऑर्डर; ऑप्शन 2, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट; ऑप्शन 3, प्री कन्वेंशनल स्टेज 1, पनिशमेंट अवॉइडेंस; ऑप्शन 4, प्री कन्वेंशनल स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. और इधर पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, कन्वेंशनल स्टेज एज लॉ एंड ऑर्डर, दिस वन. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, 14-year-old देविका इज अटेम्प्टिंग टू डेवलप ए सेंस ऑफ हरसेल्फ एज ए सेपरेट सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल. शी इज डेवलपिंग this. The question is from CTET 2014 and the options are: option 1, hatred for rules; option 2, autonomy; option 3, teenage arrogance maturity. And here the correct option will be option 2, this is autonomy. Now next question, in context of progressive education, which of the following statement is true according to John Dewey? CTET 2014. Option 1, there should not be a place for democracy in a classroom. Option 2, students should be able to solve social problem themselves. Option 3,
curiosity does not belong to the inherited nature of student, rather it is to be cultivated. Option 4, student should be observed and not here in the classroom. And the correct option will be option 2, student should be able to solve social problem themselves. खुद को सॉल्व करना है सोशल प्रॉब्लम, इसके बारे में दिया है, ये करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर द क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट. सीटेड 2014 में आ चुका है. तो हियर 4 ऑप्शंस आर देयर. अमंग दिस 4 ऑप्शन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से मतलब व्यू है, इसमें एक को छोड़ के. ठीक है, तो वो कौन सा गलत है उसको हमें चूज करना है. एक्सेप्ट दिया हुआ है इधर पे, जो एक्सेप्ट दिया हुआ है तो उसको हम चूज करना है. नाउ द ऑप्शंस आर ऑप्शन 1, इट इज नॉट रिसर्च बेस्ड. ऑप्शन 2, डिफरेंट इंटेलिजेंस डिमांड different method for different student. Option 3, gifted student usually excel in a single domain. It lacks of empirical support. तो सिंगल डोमेन का बात होता है, तो ये सिंगल डोमेन का बात है, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस सिंगल डोमेन में नहीं होता. तो इधर पे गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में ये जो बताया गया ये गलत है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन 3, गिफ्टेड स्टूडेंट यूजुअली एक्सेल इन सिंगल डोमेन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, theory of multiple intelligences cannot be legitimized as it. Options are, is not possible to measure different intelligence as there are no specific test. Option 2, does not place equal importance on all 7 intelligence. Option 3, is based only on sound empirical studies done by Abraham Maslow throughout his life. Option 4, is not compatible with general intelligence G, which is most important. And here the right answer will be option 1, is not impossible to measure different intelligence are not specific test. कोई भी specific test है हम सब इंटेलिजेंस जो है डिफरेंट इंटेलिजेंस का हम टेस्ट नहीं कर सकते. So it is impossible. So option will be option. Correct answer will be option 1. Next question, ये सीटेड 2014 का है. स्कूल बेस्ड assessment was introduced to. Option 1, decentralize the power of board of school education in the country. Option 2, ensure the holistic development of all the students. Option 3, motivate teacher to punctuously record all the activities of the student for better interpretation of their progress. Option 4, encourage schools to excel by competing with the other school in their area. और इधर पे जो सही आंसर होगा तो हम लोगों को सही आंसर होगा ऑप्शन 2, इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. दैट मीन्स किसी भी असेसमेंट का जो हम करते हैं तो उसका जो मूल्यांकन जो करते हैं तो उसके ऊपर हम लोगों का जो एम जो होता है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर हम जोर देते हैं, ना कि कुछ पार्टिकुलर विषय के ऊपर. हम टोटल जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं. तो ऑप्शन है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये राइट आंसर होगा. तो ऑप्शन 2. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटर प्रॉब्लम सॉल्विंग. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटर प्रॉब्लम सॉल्विंग. सीटेड 2014 का क्वेश्चन है. द ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन insight, second mental sets, third entrenchment, and fourth fixation. And here the first option will be option 1, which is insight. Clear? Next, question number 10, what kind of errors is common between a learner who is learning this mother tongue and the learner who learns the same language as a second language. That means language के ऊपर एक क्वेश्चन है ये सीटेड 2014 का. and the options are over generalization, option 2 simplification, option 3 developmental, option 4 hyper correction. And here the correct option will be question number option 3, it is developmental. Clear?
डेवलपमेंटल विल बी द करेक्ट आंसर। दिस वन इज द हमारे सेकेंड लैंग्वेज के ऊपर में ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट 2014 का। तो हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो हम पहले भी करेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये आ गया हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 11। ए चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फ्रॉम द फर्स्ट टाइम क्राइस प्रोफ्यूसली आफ्टर 2 years when the same child goes to the primary school for the first time, he does not express his tension by crying, rather his shoulder and neck muscles become tense. This change in his behavior can be explained on the basis of the following principles. That means कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस एक क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ये अब 2 years का एक चाइल्ड है, उसके ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन किया गया है जो फर्स्ट टाइम वो स्कूल जाता है। ठीक है, तो हमको ये करेक्ट कौन सा करेक्ट प्रिंसिपल जो उसके चेंज हुआ, जो उसके जो चाइल्ड में जो चेंज हुआ वो चेंज कौन सा प्रिंसिपल की वजह से होता है, ये हमको निकलना है। नाउ वी सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन ए सिक्वेंटल मैनर, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल। ऑप्शन 4, डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। दैट मीन्स ये 4 ऑप्शन होगा जो डेवलपमेंट के बारे में बोला गया, जो डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट सब मिला के होता है। ठीक है, तो ये अब ध्यान से पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट्स responsiveness of an individual to qualities of the environment. Option 2, adoptive children possess same IQs as their adoptive siblings. Option 3, experience does not influence brain development. Option 4, intelligence remain unaffected by the schooling. Here all the options are wrong except one. That means we have to choose this true statement. Okay, तो among this हम लोगों को जो सही में लगता है, तो फर्स्ट आंसर जो सही होता है ऑप्शन जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू। तो नेचर नर्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेचर नर्चर के ऊपर सीटेट 2014 का है, नेचर नर्चर के ऊपर। तो देखते हैं नेचर नर्चर किसके ऊपर बेस करते हैं। हियर फर्स्ट ऑप्शन जेनेटिक एंड एनवायरमेंट, ऑप्शन 2 बिहेवियर एंड एनवायरमेंट, ऑप्शन 3 एनवायरमेंट एंड बायोलॉजी, ऑप्शन 4 एनवायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग। तो हियर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट। जेनेटिक्स जो होता है नेचर से रिलेटेड किया जाता है और ये एनवायरनमेंट को हम नर्चर से रिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर ऑप्शन 1 हेल्थ क्लब, ऑप्शन 2 फैमिली, ऑप्शन 3 इको क्लब, ऑप्शन 4 पब्लिक लाइब्रेरी। एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4 पब्लिक लाइब्रेरी। पैसिव एजेंसी सोशलाइजेशन का पैसिव एजेंसी कौन सा है? ये पब्लिक लाइब्रेरी होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, इन वाइगोट्स्की थ्योरी व्हिच एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड? सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। वाइगोट्स्की का थ्योरी में एक कौन सा एक्सपेक्ट जो 4 ऑप्शन दिया है वो नेग्लेक्ट किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज सोशल, सेकेंड कल्चरल, थर्ड बायोलॉजिकल, फोर्थ लिंग्विस्टिक। हियर यू सी दिस थर्ड ऑप्शन बायोलॉजिकल जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन जो है बायोलॉजिकल, ये ऑप्शन वाइगोट्स्की के नेग्लेक्ट किया जाता है। बाकी जो सारे ऑप्शन है सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, ये इसमें वाइगोट्स्की के थ्योरी में इंक्लूड किया जाता है, सिर्फ इसको थर्ड नंबर ऑप्शन को छोड़ के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बायोलॉजिकल। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट थिंक विद देयर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स? दैट मीन्स इसमें क्या इन्फेंट के बारे में बताया गया है, जो जब थिंक करता है आई, ईयर्स और हैंड्स से। ठीक है, ये पियाजे का थ्योरी के ऊपर बेस्ड है।
तो ऑप्शन पियाजे का जो ऑप्शन वगैरह दिया गया है और करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमको निकालना है। तो ये जो इन्फेंट का थिंक विथ आईज एंड है कौन सा स्टेज में होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन 3 सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में जो ये सब एक्टिविटी होता है, थिंक विद देयर आई, ईयर्स एंड हैंड्स। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, Ria does not agree with Rishabh about setting up a class picnic. She thinks that the rules can be revised to suit the majority. This kind of peer disagreement, according to Piaget, refer to option 1 heteronomous modality, option 2 cognitive immaturity, option 3 reaction, option 4 modality of cooperation. तो दिस वन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पियाजे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से पीआर डिसएग्रीमेंट, जो पीयर ग्रुप होता है बच्चों का जो क्लास में पढ़ते हैं, तो उसमें जब डिसएग्रीमेंट होता है तो पियाजे का कौन सा जो सिद्धांत है उसके ऊपर बेस करके वो डिपेंड करता है, कौन सा पियाजे के ऊपर कौन सा बेस इसके करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें से जो चारों जो ऑप्शन है, जो हेटेरोनोमस मोडालिटी, कॉग्निटिव इमैच्योरिटी, रिक्रिएशन और मोडालिटी ऑफ कोऑपरेशन, इनमें से ऑप्शन जो है 4 है जो ये सही बैठता है, मोडालिटी ऑफ कोऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ स्टेनबर्ग हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेनबर्ग के ऊपर क्वेश्चन आता है, हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता है, सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। तो इसमें स्टेनबर्ग का थ्योरी को कौन सा दर्शाता है ये हम लोगों को निकालना है। ऑप्शन 1 है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन 2 एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, ऑप्शन 3 रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस, ऑप्शन 4 मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो ये में 4 ऑप्शन जो है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, ये स्टेनबर्ग के हायरार्की थ्योरी से नहीं होता। तो सिर्फ इसमें से स्टेनबर्ग का हायरार्की थ्योरी से जो मिलता है तो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 1, वो है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। सीटेट 2014 का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 डेविड वेस्लर, ऑप्शन 2 अल्फ्रेड बिनेट, ऑप्शन 3 चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन, ऑप्शन 4 रॉबर्ट स्टेनबर्ग। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में कौन से किया था। तो बिनेट स्केल हम जो बोलते हैं, बिनेट का जो टेस्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो इंटेलिजेंस का टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 अल्फ्रेड बिनेट। Now come to next question, question number 20. A teacher collects and reads the work of the class, then plans and adjusts the next lesson to meet student needs. She is doing, that means teacher जब कोई क्लास का जो काम होता है और प्लान जो करता है नेक्स्ट लेसन पे बारे में, जो स्टूडेंट का जो नीड है उसको पूरा कर सके, तब टीचर एक्चुअली कर क्या रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइन्यूटली आपको इसका आंसर करना, सीधा 2014 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अब ऑप्शन माइन्यूटली आपको देखना है। पहले बोला गया कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, देन असेसमेंट एज लर्निंग, देन असेसमेंट फॉर लर्निंग, देन असेसमेंट एट लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ये करेक्ट सही बैठता है, क्योंकि असेसमेंट जो फॉर लर्निंग होता है ये क्या है, हम लोगों का फॉर्मेटिव जो इवोल्यूशन है उससे साथ जुड़ता है। असेसमेंट फॉर जो फॉर्मेटिव हम लोग को याद करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग बोला जाता है। तो जब स्टूडेंट के डिमांड पूरी करने के लिए पूरे साल में जो प्लानिंग वगैरह हुआ करते हैं, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में यह आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टीचर्स हु वर्क अंडर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, सीटेट 2014 का है। ऑप्शन 1 आर overburdened as they need to take frequent tests in addition to Monday test. Option 2 need to assign project work in each subject to individual student. Option 3 observe student minutely on a daily basis to assess their values and attitude, feel a sense of ownership of the system. तो
स्कूल बेस्ड असेसमेंट के ऊपर जो क्वेश्चन है, ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट में टीचर जब काम करता है तो इसमें चारों ऑप्शन हमको केयरफुली करना है, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस जो है वो तो बर्डन वाला जो ऑप्शंस है, ओवर बर्डन, तो ये तो नहीं होगा। तो इंडिविजुअल, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट वर्ड इंडिविजुअल स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। तो ऑब्जर्व स्टूडेंट माइन्यूटली ऑन ए डेली बेसिस टू एसेस द वैल्यू और एटीट्यूड। तो वैल्यू और एटीट्यूड के बारे में देखते हैं, टीचर माइन्यूटली फॉलो करते हैं डेली बेसिस, लेकिन ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट का ये मतलब डायरेक्ट मैच नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो मैच होता है तो फील ए सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ द स्कूल, स्कूल का ओनरशिप जैसा मैच होना चाहिए, वो तो 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा और बाकी सब रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन 4 थोड़ा ये सोचने वाले क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, option 2 reasoning from particular to general, option 3 active construction and reconstruction of knowledge, option 4 method including inquiry learning and heuristic। सो सीटा 2014 के आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसमें देखो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया होता है, ये जब जो ऑप्शन है ये सब नहीं होगा, लेकिन इस दोनों में से थोड़ा गड़बड़ हमारा लगते हैं, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग क्या जनरल टू पार्टिकुलर है, इसमें और दिया गया पार्टिकुलर टू जनरल है, एक दूसरे का उल्टा। लेकिन इधर पे डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल टू पार्टिकुलर, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। अगर इंडक्टिव होता तो पार्टिकुलर टू जनरल होता, लेकिन हम लोग को जो डिडक्टिव दिया गया है तो आंसर होगा रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। सीटेट 2014 का क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करके है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से कौन सा ज़्यादा मतलब मिलता है, इसको बोलना है व्हिच ऑप्शन विल बी द मोर सुइटेबल टू द इमोशनल इंटेलिजेंस। एट फर्स्ट यू सी द ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट वन मेमोराइजिंग, सेकेंड मोटर प्रोसेसिंग, थर्ड इन्वाइसेजिंग एंड फोर्थ इम्पेथाइजिंग। सो सिंपैथी इम्पेथी जो ये सब बात जो होता है, ये सब क्या होता है इमोशनल से इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो बाकी जो मोटर मेमोराइज कॉग्निटिव के साथ है, मोटर प्रोसेसिंग जो फिजिकल डेवलपमेंट उसके है बात है, इन्वेसाइजिंग ये सब नहीं मिलता। तो ये ऑप्शन 4 जो होता है ये करेक्ट आंसर होता है इम्पेथाइजिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। तो सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन 1 ओपन इंडेड क्वेश्चन, ऑप्शन 2 प्रोजेक्ट, ऑप्शन 3 ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन 4 रैंकिंग विद स्टूडेंट। तो रैंकिंग ये स्टूडेंट जो है, बाकी सब ये सब एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये सब ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ये जो 4 है ये सब ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग को इधर पे बोला है नॉट, तो नॉट अगर जो बोलेगा तो इसमें से हम लोगों का ये ऑप्शन 4 नंबर होगा, रैंकिंग द स्टूडेंट। ये कभी भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये कोई रैंकिंग करना, सिर्फ फॉर्मेटिव नहीं, कोई असेसमेंट का कोई एम नहीं होता। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट कैन बी यूज्ड बाय टीचर इन टीचिंग टू डेवलप इनसाइट इनटू। सीटे 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट हु नीड टू बी प्रोमोटेड टू द हायर क्लास में प्रोमोटेड का बात किया गया है। ऑप्शन 2 नॉट प्रोमोटिंग दो स्टूडेंट हु डू नॉट मीट स्कूल स्टैंडर्ड से जो मिलता नहीं उसके बारे में बोला गया। ऑप्शन 3 चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड के अनुसार टीचिंग अप्रोच के बारे में बताया गया। और ऑप्शन 4 है क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट इन द क्लास। तो ब्राइट और वीक स्टूडेंट अलग अलग करना, ये सब इंक्लूसिव एजुकेशन के सब खिलाफ है, ये सब नहीं हो सकता। ये 4 नंबर ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसमें से सबसे सही क्वेश्चन जो है ये नहीं होगा, तो सही क्वेश्चन होने का चांस है ये ऑप्शन 3, दैट मीन्स चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड्स। नेक्स्ट, व्हिच one out of the following provide information about the roles and behavior which are acceptable in a group during early childhood period। तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के बारे में बोला गया है। तो जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है रोल्स एंड बिहेवियर के बारे में बताया, वो एक्सेप्टेबल है ग्रुप में अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन सर, फर्स्ट ऑप्शन सिबलिंग्स एंड टीचर्स, ऑप्शन 2 टीचर्स एंड पेयर्स, ऑप्शन 3 पेयर्स एंड पेरेंट्स।
एंड ऑप्शन 4 पेरेंट्स एंड सिबलिंग। तो इसमें से सही जो होगा, जो एक्सेप्टेबल है इंफॉर्मेशन, तो रोल्स ऑन बिहेवियर ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ग्रुप के ऊपर, तो उसमें ऑप्शन 4 हम लोग का सबसे करेक्ट लगता है, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। सीटेट 2015 का है ये क्वेश्चन। ऑप्शन 1 11 to 18 ईयर्स, ऑप्शन 2 18 to 24 ईयर्स, ऑप्शन 3 12 to 6 ईयर, ऑप्शन 4 6 to 11 ईयर्स। तो लेटर चाइल्डहुड हम लोग को बोला गया है, तो हम लोग को ये ख्याल रखना है, लेटर चाइल्डहुड तो ये सब नहीं होगा। तो इसमें लेटर चाइल्डहुड दर्शाता है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 6 to 11 ईयर्स। क्लियर। Arjab says that language development is influenced by one innate predisposition, while Sonali feels that it is because of environment. The discussion between Arjab and Sonali is about. तो ये थोड़ा सोचने वाली क्वेश्चन है सीटेट 2015 का। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बोला गया। जो एक ने बोला कि इन्फ्लुएंस के प्री डिपोजिशन बोला गया, सोनाली उसमें फील करता है कि एनवायरनमेंट के वजह से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है। और आर्जब जो बोलता है वन इननेट के ऊपर होता है, और एक ने बोला एनवायरनमेंट के ऊपर होता है। तो अब जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन किसके ऊपर बेस है। ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, क्रिटिकल एंड सेंसिटिव फीलिंग, ऑप्शन 2 स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी आर्गूमेंट, ऑप्शन 3 कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस लर्निंग, एंड ऑप्शन 4 नेचर एंड नर्चर डिबेट। तो एक इननेट जो होता है, ये जो नेचर है, और नर्चर होता है एनवायरनमेंट। अभी एक क्वेश्चन हमने नेचर और नर्चर के ऊपर किया है, तो नेचर और नर्चर के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसका सही में इसका आप लोग का ज्ञान बहुत जरूरी होता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बताया जाता है। तो इधर हम लोग का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 नेचर एंड नर्चर डिबेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी व्हिच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोर्टेलिटी इन द ट्रू सेंस। दैट मीन्स सीधे 2015 का है, तो इसमें ऑप्शन वगैरह दिया है लेवल 3, लेवल 4, लेवल 1, लेवल 2। तो ये चार जो ये सब कोलबर्ग का जो लॉरेंस कोलबर्ग का है, कोलबर्ग का जो लेवल्स है, ये लेवल को आप लोगों को याद रखना है। तो ये एब्सेंस ऑफ मोरालिटी किस में नहीं, ट्रू सेंस में नहीं रहता। ठीक है। तो ये हम लोगों को ठीक से याद रखना है, कौन सा लेवल से मोरालिटी से रिलेटेड नहीं करता। तो लेवल फर्स्ट में लेवल 3, उसके बाद लेवल 4, लेवल 1, लेवल 2। तो इसमें से करेक्ट जो होता है लेवल 1। लेवल 1 में ऐसा मोरालिटी का बात नहीं होता। ऑप्शन 3 जो होता है ये लेवल 1, ये करेक्ट आंसर होगा लेवल 1। ठीक से याद रखिएगा, लेवल 1 ऑप्शन 3। नाउ इट इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। सीटे 2015 का क्वेश्चन है। तो क्या बोला, प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन, वो से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो कौन सा फॉल्स है, बाकी सब करेक्ट होगा, एक इसमें फॉल्स होगा। तो वो फॉल्स हम लोगों का ढूंढ निकालना है, वही करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यू सी, ऑप्शन 1 एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप वर्क एंड लर्निंग सोशल स्किल, ऑप्शन 2 चिल्ड्रन एक्सेप्ट दैट they are offered by the school irrespective of their social background, option 3 there should be a place of democracy in the classroom, ऑप्शन 4 सोशलाइजेशन इज एन एडॉप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स। तो इसमें से देखो चार जो एक्टिव पार्टिसिपेशन का बात बोला गया, उसके बाद बोला गया कि क्लासरूम में डेमोक्रेसी की बात बोला गया, सोशलाइजेशन के सोशल नॉर्म्स के बारे में। तो ये सब बाकी सब करेक्ट है, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन जो करेक्ट लगता है, इस चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ठीक नहीं लगता। तो इसमें यही इनकरेक्ट यही है। तो ये हम लोग का ये ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। सो हियर हमने ये 30 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये बहुत ही सीटेट के लिए जुलाई 2020 का जो सीटेट एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ बताइए, और हम लोगों का वीडियो अगर अच्छे लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।